Hello Rajiv, how are you? Sir, I'm good. I'm good. How are you, sir? I am good. Uh, Rajiv, tell me something about yourself. Yes, of course. Just as I said, my name is Raju Sagar, and basically I'm from Agra, UP. And my education qualification, I have done 10 plus 2 and Polytechnic Diploma in Electrical branch. And I have been working since 7 year plus in facility management. And currently I'm working as a shift engineer uh, in Noida Sector 132. Okay. Yeah. What is your core area in electrical, in technical? Yes, yes, they said I have done Polytechnic diploma in electrical branch, so my strong stream is electrical, but I can handle plumbing and HVAC as well as, but my core is electrical. Okay, okay. As you are working as a safety engineer, you have to handle multiple things. That's why uh, your main core is electrical, but you are able to handle other things also like plumbing, electrical, fire, and all facility. Yes, sir. Yes. Okay, okay. Now we are going to start our technical session, Okay. and here we will firstly will discuss about first tell me uh, about whatever you see in the facility, whatever equipments you I think have, and there is some network issue. pardon? Your voice is breaking. Okay, okay. I think there is network issue. Your voice is breaking. No, no. My side it's 5G connection I maybe. Oh my God, I think it's my side. But I am in office, so there is no issue related to network. Okay, sir. Yeah, Yeah, carry on. yeah. I'm asking. First, you tell me what is the facility management and what type equipments you are handling there, what type reports you are making, and whom you are reporting, and tell me something about your job profile. Okay, sir. Yes, yes. Just if I talk about facility management job, so there I have to do multiple work electrical and plumbing and HVAC I firefighting. I And if think I talk about we have to speak in Hindi because most of the viewers they like to listen this in Hindi. So yes, we'll sir. मैं no हिंदी में no comfortable हूँ. no. I know. I feel that you are comfortable. Your communication is good. Uh, whatever I observe, Okay, sir. Hi. that is okay. But बिल्कुल सर. my हाँ. second thing which I want through this video कि जो listeners हैं, जो viewers हैं, उनको कुछ न कुछ पता लगे कि फैसिलिटी में क्या चीज़ें होती हैं और कैसे कैसे हैं क्योंकि जो टेक्नीशियन हैं सुपरवाइजर हैं या जो नीचे पे जो लोग रहते हैं दे कांट अंडरस्टैंड in English. So we Correct, sir. Correct. continue our conversation in Hindi. Of course, sir. Of course. तो बताइए आपकी फैसिलिटी में क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या देखा है और क्या रिपोर्ट्स हैं, किनको रिपोर्ट करते हो? थोड़ा सिस्टम के बारे में बताइए। यस सर, ऑफ कोर्स सर। सर मैं फैसिलिटी मैनेजमेंट की बात करूं तो ये एक एज ए हम सपोर्ट फंक्शन की तरह काम करते हैं। लाइक हमारा कोई ऐसा रोल तो काफी बड़ा होता है, बट हमें सारे मल्टीपल काम करने पड़ते हैं। जैसे हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या किसी आईटी सेक्टर आईटी ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो हमें इवन सॉफ्ट सर्विस से लेके टेक्निकल सपोर्ट तक काम करना पड़ता है। लाइक आईटी भी देखनी पड़ती है। जैसे हम ऑफिस में लाइट का प्रॉब्लम है, एचवीएसी का प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिकल का भी प्रॉब्लम है, प्लम्बिंग का प्रॉब्लम है। तो एज ए वॉशरूम से लेके और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से ट्रांसफार्मर, डी सिस्टम और डेटा सेंटर, इन सबको देखना पड़ता है। और काम कोई इतना बड़ा नहीं होता कि कोई हमें बड़ा कोई कोई बड़ा फॉल्ट है या कोई बड़ा काम होता है, वो इतना बड़ा नहीं होता। बट हमें एक मेंटेनेंस मैनेज करनी होती है थिंग्स। जैसे कोई भी प्रॉब्लम आई है, कोई भी कंप्लेन आई है, तो ये काम रहता है। और बाकी रिपोर्ट करने की बात है तो मैं यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन जो एडमिन मैनेजर है उनको रिपोर्ट करता हूँ। और मेरी जो टीम है ना वो 12 लोगों की टीम है। और तो मैंने काम सारे किए हैं। एज एमएसटी मैंने काम किया है,
और मैं काम सारी जानता हूँ तो मेरी टीम करती है, और यदि टीम पे नहीं हो रहा है तो मुझे भी जाना पड़ता है, मैं खुद अटेंड करता हूँ कॉल। तो ये मेरा यहाँ का रूटीन है। और मैं रूटीन की बात करूँ तो जब सुबह हम जॉब आते हैं तो फर्स्टली हम चेक करते हैं कि हमारे इक्विपमेंट जो भी चल रहे हैं, जैसे यूपीएस सिस्टम, डेटा सेंटर और भी जैसे डीजी सिस्टम है, उनको चेक करना। और हमारा डिलीवर है तो कोई हमें किसी कोई कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, या कोई लाइक कोई फॉल्ट या कोई, तो वो भी हमें बता के जाएंगे, तो उसको भी देखना होता है, उसके बाद हमें रिपोर्ट करनी होती है सर। दैट्स इट। ओके, रिपोर्ट्स जो होती हैं, कौन सी रिपोर्ट्स एक एग्जीक्यूटिव को बनानी होती हैं, या आप कौन सी रिपोर्ट्स हैं उनको बनाते हैं? सर कहना है, कैन होल्ड वन सेकंड, वो लाइट यस, थोड़ी सी। यस, यस, इट्स ओके। वन सेकंड। या कृष्णा, अबे लाइट ऑन कर यार। अरे जला यार, तू क्यों बंद कर गया? बे सेशन है। हाँ। अच्छा, मैं रिपोर्ट की बात करूँ तो मेरी जो साइड पे है, एक एक डेली रिपोर्ट होती है जिसमें हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन और जो भी फ्यूल का कंजप्शन और लोड, जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है बता ही दिया, और प्लम्बिंग वाटर का कंजप्शन क्या है, और कितनी कंप्लेन, कोई पेंडिंग तो नहीं है, कितनी कंप्लेन आपने अटेंड की, जैसे उसको हम बोलते हैं, जैसे क्या बोलते हैं उसको, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ शायद हिंदी में। जैसे कोई फॉल्ट तो नहीं है, फॉल्ट का मतलब कोई मशीनरी में कोई ब्रेकडाउन। प्रॉब्लम तो नहीं आई, या इंसिडेंट रिपोर्ट होगी। तो हम सारी एक फिल करके और एज ए मेल करते हैं। तो ये हमारा डेली रिपोर्ट है। बाकी लॉग बुक्स हैं, उनको मेंटेन करना, उनको देखना, ये सब एज ए रिकॉर्ड में रखना, ये सर काम होता है एज ए फैसिलिटी एग्जीक्यूटिव का। डाटा सेंटर में क्या कोर ऐसी वर्क होता है जो हमें थोड़ा देखना पड़ता है, जहाँ मेनली फोकस करना पड़ता है? यस सर, बड़ा बढ़िया सवाल किया आपने। डाटा सेंटर की बात करूं तो जो कंपनी का जो भी बिजनेस चलता है, या कंपनी जो भी चलती है, डेटा सेंटर पे ही चलती है। तो डाटा सेंटर में क्या होता है कि कंपनी का जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो उनका जो इंटरनेट चल रहा है वो सब वहीं से चलता है, डाटा सेंटर से। और जो भी कंपनी का जो उनका पर्सनल डेटा है, या जो भी उनका जो डेटा जो होता है, या मैं किसी और तरीके से कहूँ, जैसे उनका पर्सनल है या कुछ जॉब का जो कुछ है, वो वहीं पे सेव होना और वहीं से इंटरनेट की सप्लाई होना एम्प्लॉय तक। तो डेटा सेंटर एक मेन पार्ट है सब आईटी सेक्टर का, ये आईटी जो कंपनियां हैं। तो उसको मेंटेन करने के लिए काफी क्रिटिकल इक्विपमेंट है, उसके लिए हमारे यूपीएस सिस्टम और पीएसी, कहीं कहीं नॉर्मल एसी भी लगती है। तो ये उसको ठंडा करने के लिए लगाई जाती हैं। और डेटा सेंटर के अंदर आपके रैक्स होते हैं, जिसमें आपके मल्टीपल, जिसको स्विच केयर बोलते हैं, वो लगे होते हैं, जिसमें डेटा सेव होता है। और कुछ पीबीएक्स का भी रैक होती है जो टेलीफोन चलता है। तो ये डेटा सेंटर है। तो डेटा सेंटर में मैंने देखा कि फ्लोरिंग करके जो कूलिंग है वो नीचे से दी जाती है, जो एयर है वो मोस्टली डाटा सेंटर में जो सीलिंग होती है, मतलब जो नीचे रैक के नीचे से दी जाती है। और ऐसा क्यों किया जाता है? आपके इधर कहाँ बिल्कुल से सर। दिया गया, ऊपर से ही है या कुछ इस तरह ही है? बिल्कुल सर, बढ़िया सवाल। क्योंकि यदि मैं इसकी इसके पीछे, कुछ लोगों को ज्यादा तो नहीं पता होता, लेकिन सोचते हैं नीचे से हवा क्यों दी जाती है। मैं हवा की बात करूं कि जो नीचे से हवा आती है वो ठंडी हवा होती है। और हम्म, हमेशा ठंडी हवा भारी होती है अपेक्षा गर्म हवा की। दूसरी थिंग ये है कि जब नीचे से हवा ठंडी आएगी तो हमारी पूरी रैक को ठंडा करते हुए और ऊपर गर्म होके वो दोबारा जो पीएचई लग रही है वो उसको सक करेगी, यानी कि वो रिटर्न उसी के पास चली जाएगी। हम्म, तीसरी चीज ये है कि यदि मैं फ्लोरिंग की बात करूं, नीचे से हवा जाती है जिससे किसी भी तरह के, जैसे कोई कीड़े मकोड़े या चूहा चूहे जो होते हैं या सांप वगैरह, वो नीचे सरवाइव ना कर पाए, क्योंकि इतना टेम्परेचर रहेगा कि वो सरवाइव नहीं कर सकते। तो ये भी एक चीज है। तो इसलिए उसका जो फ्लो होना है वो हम नीचे से देते हैं, जिससे पूरी रैक प्रॉपर ठंडी होती जाए और गर्म एयर ऊपर से रिटर्न उसी में चली जाए। डाटा सेंटर का कभी ब्रेकडाउन लेके मेंटेनेंस किया है आपने? हाँ सर, हमारे यहाँ 1 ईयर में, कब 1 ईयर में तो नहीं, कभी कभी जैसे 2 या 3 ईयर्स में होता है। तो बिल्कुल होता है सर। तो उसको क्या है, उसको कुछ स्पेशल तरीके से प्लान करते हैं? क्योंकि मैंने ना तीन चार ऐसे मैंने पर्सनली किए हैं, तीन चार ब्रेकडाउन, या ब्रेकडाउन तो उसको नहीं बोलेंगे, मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव हाँ। मेंटेनेंस ऐसे किए हैं। तो उसको कुछ हाँ। थोड़ा बताओगे कि उसको कुछ स्पेशल तरीके से प्लान किया जाता है,
एक-एक मिनट को काउंट करके, एक-एक मिनट को ऑब्जर्व करके पूरा प्लान किया जाता है कि मेरे को 1 घंटे का शटडाउन है तो मुझे इस 5 मिनट में ये करना है, ये सारी चीज़ें। तो उस तरह उसका कुछ है एक्सपीरियंस आपका? हाँ, यस सर। हमारे यहाँ का डेटा सेंटर थोड़ा बड़ा नहीं है, चूँकि हमारा जो ऑर्गेनाइज़ेशन कुछ अलग टाइप का है। हुँ, बट हुँ। हाँ, एक बार डेटा सेंटर हमारी पैन इंडिया का हुआ था। हुँ, हुँ। सॉरी, मेंटेनेंस जो हुआ था, उसमें ये होता है कि पहले से ही हमारे पास डिटेल्स आ जाती है कि हमें ये या 2 घंटे हमारी एक्टिविटी चलेगी या हाफ 1 एंड हाफ एन आवर चलेगी। हुँ, वो हुँ। एक्टिविटी लिया होता है और काम को बाँट दिया जाता है। आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको इतने में ये टाइटनेस करनी है। जैसे उसके अंदर हमारे पैनल्स डीबी डीबी लगी होती हैं, हुँ, हुँ। सबके लिए इंडिविजुअल सॉकेट होती हैं। आपको ये टाइटन करना है, इसको टाइटनेस करनी है, इसकी टाइटनेस करनी है। तो ये सब काम बाँट दिए जाते हैं और उसी तरीके से और उसमें सारे लोग आपके शामिल होते हैं जैसे मैनेजर, एडमिन मैनेजर, एवीपी लेवल के तक के और आईटी के एवीपी लेवल के तक के उसमें सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं और वो बढ़िया है एकदम प्लान जिसको प्लान प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहते हैं उस तरीके से किया जाता है और विद इन जो हमें जो टास्क दिया है वो टाइमिंग का उस टाइमिंग में ही हम उसको पहले ही करने की कोशिश करते हैं और होता भी है। इसमें जो बिल्डिंग के अंदर है, एचवीएसी का क्या मेन पार्ट होता है? एचवीएसी का क्या रोल होता है और क्या-क्या चीज़ें आती हैं एचवीएसी के अंदर? वो कैसे-कैसे वर्क करती हैं? बिल्कुल सर, एचवीएसी एक मैं कहूँ तो बिल्डिंग के लिए एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो यहाँ पे जो जितने भी लोग काम करते हैं जिसको हम ह्यूमन बीइंग बोलो वो जो काम करते हैं उनको कंफर्ट जोन कौन प्रोवाइड करा के एचवीएसी कराती है। तो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ही है ये बिल्डिंग का। और जैसे कहीं कहीं एचवीएसी में बात करूँ बीआरएफ सिस्टम है, कहीं चिलर प्लांट है, तो ये मेन पार्ट है हर कमर्शियल बिल्डिंग हो या कोई कॉर्पोरेट ऑफिस हो। ओके। तो इसके अंदर जो एचवीएसी है, इसके अंदर कुछ स्पेशल चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती है, जैसे मेंटेनेंस में कुछ स्पेशल है, कुछ कोई एक्टिविटी होती है या विंटर समर में कुछ इस तरह की एक्टिविटी प्लान की जाती है, तो कैसे करते हैं? मतलब एज ए एग्जीक्यूटिव आप उसको कैसे प्लान करेंगे? सपोज अभी गर्मियों से सर्दियां स्टार्ट हुई हैं, आपके इधर वीआरवी सिस्टम है क्या है? हाँ, मेरे यहाँ बीआरबी सिस्टम है सर। तो उसके लिए तो उसको टेम्परेचर पे डाल दिया होगा। अगर चिलर सिस्टम पे कभी आपने वर्क किया है? चिलर सिस्टम पे मैंने किया है पर सबसे ज़्यादा बीआरबी पे किया है जो काम। हाँ, उस चिलर पे भी किया है मैंने काम। ठीक है। तो वीआरबी में तो कुछ एज सच नहीं होता, जैसे चिलर में होता है कि मुझे चिलर को शट डाउन करके चिलर के लिए कुछ एक्टिविटी प्लान करनी पड़ती है, कूलिंग टावर के लिए पूरा प्लान करना पड़ता है, हॉट वाटर जनरेटर है उसका पहले ही चेक करके सारी चीज़ें क्या प्रॉब्लम है, हीटर कितने ओके हैं, पूरा सर्विस करके उसको रेडी किया जाता है। तो बिल्कुल सर। जो चिलर प्लांट होता है ना वो काफ़ी कॉस्टली इक्विपमेंट है और यदि बीआरबी की बात करूँ तो उसके कंपेयर में बीआरबी बहुत छोटा सिस्टम मानो और वो उसकी जो टेक केयर है ना वो कुछ ज़्यादा ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होती बीआरबी की। मैं अपनी साइड की बात करूँ तो हम लोग विंटर सीजन में जैसे ही समर का सीजन आता है तो जनवरी या फरवरी फरवरी मार्च में हम लोग एक हेल्थ चेकअप करते हैं सारी मशीनों का। तो सारी मशीनें हेल्थ चेकअप जैसे कि कोई पीसीबी कार्ड का इशू तो नहीं है और उस टेम्परेचर तक जाके चेक करते हैं कि 18 हम सेट करेंगे तो इतना हमारा जो जो मतलब हमारा जो जिसको हम बोलते हैं ग्रिल टेम्परेचर कितना आ रहा है। तो ये सारी हम हेल्थ चेकअप करते हैं और कभी कोई किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो उसको रिप्लेस करना है या फिर रिपेयर करना है। तो ये हमारा मुश्किल रहता है और इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है बट बीआरबी का एक डिसएडवांटेज ये है यदि एम्बिएंट टेम्परेचर 45 से क्रॉस करेगा 40 से तो उसकी जो एफिशिएंसी काफ़ी कम हो जाती है और वो फिर काम नहीं करता प्रॉपर्ली। यदि मैं चिलर की बात करूँ तो वो 50 तक भी अच्छे से काम कर सकता है। तो काफ़ी डिसएडवांटेज भी हैं बीआरबी के और तो ये है हमारे यहाँ सर। कोई ऐसा चिलर को लेके या आपके ट्रांसफार्मर या डीजी को लेके आपने कोई मेजर चैलेंज फेस किया है? हाँ सर, बिल्कुल। मैं डीजी से लेके एक काफ़ी बड़ा मतलब प्रॉब्लम हुई है हमारे यहाँ, हमारी साइड पे उसमें काफ़ी लोगों की जॉब भी चली गई थी। प्रॉब्लम ये हुई थी कि हमारे यहाँ डीजी के जो जो मेन टैंक होता है जिसको एचएसटी टैंक बोलते हैं, उसमें किसी पता नहीं किस वजह से उसमें वाटर आ गया था, रेनी वाटर जो उसके अंदर एंटर कर गया था ओके। और हमारे जो लोड पे
3 डीजी जो है, 2 डीजी रनिंग में थे, 3 डी मतलब 3 डीजी थे हमारे पास, हम्म। और 2 डीजी चल रहे थे, और वो पानी एंटर कर गया, वो सब फ़िल्टर कुछ काम नहीं किया प्रॉपर, मतलब जब इतना फ्यूल पानी आ गया फ्यूल के अंदर कि फ़िल्टर-विल्टर सब चोक कर दिया। यानी कि पहले पहले क्या हुआ कि फर्स्ट डीजी बंद हो गया, अब समझ नहीं पाते जब तक उन्होंने क्या कमांड दे दी कि पैनल हमारा इधर है, डीजी थोड़ा दूर थे। उन्होंने ये नहीं सोचा हो सकता है कि किसी कारण से बंद हो गया हो या फिर शट डाउन हो गया हो, तो उन्होंने दूसरे को कमांड दे दी क्योंकि पूरा टावर चल रहा है। हम्म। अब क्या होगा, दूसरा जो पहले बंद हुआ, दूसरे वाला फिर दूसरी बार बंद हो गया, यानी तीसरा फिर बंद हो गया, यानी पूरा कहते ना शट डाउन हो गया पूरा टावर। अब जब तक समझ पाते क्या हो गया, जब वहां जाके देखा तो फिर तो फिल्टर को खोला, यार क्या प्रॉब्लम है। अब तो फिर सब लोग जो भी मैनेजमेंट के सब ऊपर आ गए, सब उसी के पास खड़े हो गए। तो ये बहुत बड़ा मेजर जिसको हम बोले, लेकिन उस चीज को हम कम से 3 से 4 घंटे हमें लग गए। काफी हमने रिक्वेस्ट की यूपीपीसीएल सब स्टेशन से कि हमें सप्लाई दे दो, तब जाके 2 से ढाई घंटे हमारा टावर पूरा बंद रहा। बस इवन सर्वर को छोड़ के जो भी है उनसे रिक्वेस्ट की थी यूनिट वालों से कि आप या जो भी कंप्यूटर सिस्टम है उनको आप डेटा सेव कर लें और अपने सर्वर को बचाएं, अपने डेटा सेंटर को बचाएं। तो ये एक बहुत बड़ा एक मेजर फॉल्ट था हमारी साइड तो का। क्या लर्निंग मिली आपको इससे, और उसको कैसे, मतलब आप दूसरी जगह जाएंगे तो उसको कैसे ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर भी उसको कैसे फोकस करते हैं, उसके लिए क्या चेक्स बनाए गए, तो वो थोड़ा कुछ। बिल्कुल सर। अब मैं उसकी बात करूं तो हमें किसी भी, जैसे टेक्नीशियन बिलीव कर लेते हैं कि आपने टैंक चेक किया तो वो वहाँ रिपोर्ट है जी सर ओके है, सब कुछ ओके है, तो आप उसकी भी बात देख लेना, आप खुद जाके चेक करें। ये सबसे अच्छा पॉइंट है, आप उसमें सक्सेस रहोगे, वरना क्या होगा, कभी भी हो सकता है आपके साथ गलती। तो खुद चेक करना है। और कभी भी जैसे रैनी सीजन आता है या जो भी है ना, उससे पहले आप सारी तैयारी रखें कि कहीं कोई लीकेज तो नहीं हो सकता, कहीं वाटर तो नहीं जा सकता उसमें। तो ये इस तरीके की आप ध्यान में रखेंगे तो जहाँ तक है फॉल्ट आने के चांसेस कम हो जाए। इट मीन कि एक एग्जीक्यूटिव के लिए एक स्पेशल चेकलिस्ट होनी चाहिए जो उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, ऐसा ठीक है टीम पर हमें थोड़ा फेथ करके चलना पड़ेगा, बट एक अपने लिए भी कि ठीक है हर 2 या 3 दिन में मुझे ये सारी चीजें पर्सनली चेक करनी है, कुछ जो क्रिटिकल चीजें हैं। करेक्ट। जी सर, ये मैं फॉलो करता हूँ क्योंकि हमारे जो जो मैनेजर है ना, वो खुद इस चीज को फॉलो करते हैं। वो हमसे रिपोर्ट लेंगे उसके बाद वो खुद जाके देखते हैं कि ये बात सही है या गलत है। तो मैंने भी उनसे सीखा है कि मैं खुद ही जाके सारी चीजें खुद चेक करता हूँ टीम के काम होने के बाद भी। और हमारा एक राउंड भी होता है हर जैसे 1 से 2 वीक में हमारे एडमिन के साथ। और बाकी तो मैं इस चीज के लिए काफी, हाँ, मैं खुद ही रेडी रहता हूँ कि मुझे जाके देखना है, और बड़ा अच्छा लगता है मुझे देख के, क्योंकि उससे एक सेटिस्फाइड मिलता है कि हाँ यार मैंने कुछ चेक किया और मेरा सिस्टम सब कुछ ओके है। क्योंकि सिस्टम ओके है तो आपकी जॉब भी सिक्योर है, वरना फैसिलिटी में बड़े। नहीं नहीं यार, एक क्या होता है कि जो यूपीएस होता है, यूपीएस हाँ, कितने यूपीएस लगे हैं आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ 3 4 3 7 समथिंग 10 यूपीएस लगे हैं। ओके। तो यूपीएस पे जो लोड डाला जाता है, सपोज एक हाँ, यूपीएस पे जो लोड चल रहा है, टोटल कितना लोड डालते हैं? टोटल यदि लोड का वैसे किस सैप किस हाँ हाँ किस तरह करके सिंक्रोनाइज करके सिंक करके रखते हैं सारी यूपीएस को, तो उन पे कितना लोड रहता हाँ है, हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ। बिल्कुल परसेंट। सर। हमारे यहाँ जो यूपीएस चलते हैं, कुछ पैरेलल में चलते हैं, कुछ हॉट स्टैंड बाई में चलते हैं। तो मैं पैरेलल की बात करूं तो हमेशा 40% से लोड मतलब अधिक नहीं लेके जा सकते हम लोग। वैसे तो 25 20 30 चलता है, बट 40% पे हमारी सेटिंग है। यानी कि 40% यदि एक पे लोड होगा, 20 20 दोनों पे रहेगा, और एक पे 40 आ गया, तो इस केस में क्या होता है कि हमारी जो कैपेसिटी है, माना 80, एफिशिएंसी तो 100% किसी की भी नहीं होती, मे बी थोड़ा बहुत तो हो जाता है। तो 40 इसलिए रखते हैं कि इवन दूसरा खराब हो जाएगा तो उसका जो लोड ट्रांसफर होगा फर्स्ट पे आ जाएगा। तो 80% पे वो काम कर जाएगा, वरना दोनों के दोनों चलेगी तो आपका पूरा सिस्टम फेल। तो इसलिए हम 40% पे हमारे यहाँ सेटिंग है, बट लोड मैक्सिमम 25 to 28 या 30 मैक्सिमम मान लो इतना रहता है। हमारे यहाँ का जो सिस्टम है यूपीएस सर इस तरीके से है कि जैसे मैं हमारे एक फ्लोर पे 3 यूपीएस लगे हैं, जिसमें एक हॉट स्टैंड बाई 2 पैरेलल में, हमेशा 2 पैरेलल में चलते हैं। और जो हॉट स्टैंड बाई है वो, यानी एक खराब हो गया तो दूसरे पे ट्रांसफर हो जाएगा, दूसरा भी खराब हो गया तो तीसरा उस लोड को ले जाएगा। इसमें कनेक्शन जो कैसे हॉट स्टैंड कैसे बाई होते है। हैं अपने यूपीएस में, जैसे हाँ, मतलब
अगर मैं बोलूँ कि जैसे मेन बाईपास, स्टैटिक बाईपास और मेन सप्लाई, इस तरह करके रहता है। अगर सपोज मेरा यूपीएस किसी हाँ। वजह से बंद हो गया, तो क्या पीछे से पावर सप्लाई मिलती रहेगी या क्या होगा उस केस में? अ, इसमें तो जैसे आपको तो पता ही सर, बैटरी बैंक होता है बैकअप के लिए। हम्म। जैसे आप कह रहे हैं कि माने कि मैंने मेरी इनपुट फेल हो बैटरी गया, फेल हो गई है उस किसी उसके वजह से, सिर्फ। जो बैटरी का स्विच रहता है वो कुछ गड़बड़ हो गया हाँ। या कुछ उस तरह का कुछ कंसर्न हो गया है। हम्म। तो हाँ तो जी हम्म, जी जी बता। उस केस में क्या रहता है? स्टैटिक बाईपास है या क्या कुछ है मतलब उसके अंदर? स्टैटिक बाईपास है, एक मेंटेनेंस बाईपास है। स्टैटिक बाईपास तो रहता ही है, क्योंकि वो तो मेन इसका पार्ट है। हम्म जैसे माना कि किसी बैटरी ओपन हो जाए, कोई एक बैटरी, तो आपका पूरा सर्किट आपका टूट गया। तो हम्म उस समय तो आपका क्या होगा कि बैटरी बैंक से तो आपका लोड बिल्कुल आपका बंद हो गया। हम्म तो उस समय स्टैटिक बाईपास जो होता है ना, उसके थ्रू क्या होता है कि हमारी मेन से जोड़ देता है वो। हम्म बट अगर मेन सप्लाई फेल होगी, तो फिर आपके यूपीएस का, फिर आपका यूपीएस तो बंद होना है। फिर तो हम्म कुछ होना नहीं, आप कहते क्योंकि फ्लक्चुएट होगी सप्लाई, तो उस केस में कुछ होना नहीं। तो इसलिए हमारा पैरेलल में लग रहा है। जो पैरेलल वाला जो यूपीएस है ना, वो अपने पे ट्रांसफर कर लेगा सारा लोड। इसलिए यहाँ पे पैरेलल सिस्टम मोस्टली हर साइड पे मिल जाएगा आपको। और हमारा एचवीसी हो गया है, तो डब्ल्यूटीपी एसटीपी वगैरह भी हैं उधर क्या? बिल्कुल है सर, एसटीपी है। तो एसटीपी के डब्ल्यू बारे में थोड़ा बताइए, उसमें क्या क्या चीजें स्पेशल ध्यान रखनी चाहिए? एसटीपी की बात करूँ तो मुझे ज़्यादा डीपली नॉलेज उस तरह नहीं है, बट कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम मेंटेन करते हैं। जैसे टीडीएस, टीएसएस, पीएच वैल्यू, सीओडी, बीओडी, इन चीज़ों को हम लोग यहाँ पे मेंटेन करते हैं। क्योंकि इस चीज़ को मेंटेन नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ गाइडलाइंस हैं जो हमें हमारे या टावर को या हमारे इस प्लांट को बंद भी करवा सकते हैं। तो इसके लिए कुछ पैरामीटर्स बने हैं, कुछ रीडिंग्स होती हैं इनको कि इतना आपके अंदर सीओडी की वैल्यू है, बीएडी की वैल्यू या टीएसएस होना चाहिए। तो ये सर हमारे यहाँ। ओके। तो और कुछ ऐसा कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए या कुछ आप बताना चाहें जो किसी के लिए कुछ लर्निंग बन सके? या लोगों का एक मेन कंसर्न आजकल क्या होता है कि जैसे आपका सबसे प्लस पॉइंट मुझे क्या लगा कि आपने ग्राउंड से स्टार्ट करके यहाँ तक पहुँचे हैं। और आपका जो नेक्स्ट टारगेट है वो भी काफ़ी नज़दीक है आपके, एक मैनेजर वाला बिल्कुल सर। टारगेट है। तो आप लोगों को कुछ कहना चाहेंगे कि कैसे वो आगे जा सकते हैं लाइफ में, कैसे सक्सेस हो सकते हैं? लोगों का कहना ये होता है कि जो भी होता है अप्रोच से होता है, बिना अप्रोच कुछ नहीं है। तो आई एम नॉट एग्री विद दिस कि ठीक है, 2 4 5% तो होता है कि लोगों का अप्रोच हो जाए, बट 80% अप्रोच नहीं होता। 20% तक मैक्सिमम मैं कह दे सकता हूँ कि किसी की अप्रोच से जॉब लग सकती है। बट 80% है वो आपकी नॉलेज से, आपकी क्वालिटी से ही रहती है। तो बिल्कुल सर, मैं आपसे 100% एग्रीड हूँ। मैं बात करूँ, मैं फैसिलिटी में काम करता हूँ और मैं यहाँ देखा है कि फैसिलिटी का जो काम होता है ना, वो इतना इतना बिजी नहीं होता कि आप बंदा सुबह 8 बजे आया तो 8 से 8 या 8 से जो भी है 2 बजे तक शिफ्ट करता है, तो उसका ना मतलब टाइम ही ना मिले कुछ करने के लिए। मैंने यहाँ देखा है कि 80 से 90% जो बंदे होते हैं ना, वो मैंने देखे हैं कि वो अपना जो टाइम है ना वेस्ट करते हैं कुछ बुरी चीजों में, लाइक मतलब ना, मैं बुरी तो नहीं कहूंगा, पर कुछ अलग ही चीजों में अपना समय बर्बाद करते हैं। जैसे वीडियो देखना, एंटरटेनमेंट की वो काम कर रहे हैं, एवरीडे रीडिंग फिलअप करते हैं वो। लेकिन उनको ये नहीं पता कि यदि कोई सवाल करेगा ये क्या होता है ओटीआई, तो उनको नहीं पता। लेकिन क्या है ना, एक उन्होंने ऐसा क्रम बना लिया है कि सब आते हैं, मैं भी करता जा रहा हूँ। तो एक ना हैबिचुअल हो चुके हैं। तो लर्निंग की बात करूँ तो यहाँ पे लोग है ना सीखना नहीं चाहते, क्योंकि जब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है जॉब में, तो आप है ना कोशिश नहीं करोगे आगे आने की। और फिर क्या होता है, आज नहीं कर रहे हैं, कल हमारा लेट हो जाते हैं, या हमें 1 साल बाद हम हो जाते हैं हैबिचुअल। फिर हम कोशिश करते हैं ठीक है यार, वो भी तो कर रहा है, हमें कौन सा देर हो गया, वो 10 साल से कर रहा है, मैं तो 2 साल से कर रहा हूँ। ये हमारे दिमाग में ब्रेन वॉश की तरह चलता रहता है। फिर हम सोचते हैं अरे कुछ नहीं होता भाई, जिनकी जुगाड़ है उन्हीं का होता है। मैंने खूब खूब एग्जाम्पल देखे बहुत से लोगों के, वो यही कहते हैं अरे उसका है, उसका उसका भाई है, उसका वो मैनेजर है। मैंने देखा है, बट मैंने काफी एग्जाम्पल ऐसे देखे हैं, जो बंदे मैंने अभी देखे हैं, जो एज ए असिस्टेंट मैनेजर, टेक्निकल मैनेजर बने बैठे हैं केवल अपनी मेहनत पे। तो सर मुझे जो नेगेटिव पॉइंट लगता है लड़कों का, कि वो 80% पूरा दिन मोबाइल चलाते हैं। ऐसी चीजें देखेंगे रिलेटेड टू अपनी नहीं देखेंगे।
और उन्हें अपने काम वो कर रहे हैं सालों से, दसों साल, उनको अभी नहीं पता ये क्या होती है और क्यों लगाई जाती है। हुँ, हुँ। तो ये सबसे बड़ी मुझे मुझे लगती है सर, और मेरे हिसाब से सबको सीखना भी चाहिए लड़कों को, जितने भी काम कर रहे हैं। तो मैं यही मैसेज तो देने लायक नहीं हूँ, बट मैं थोड़ा-सा उनको सजेस्ट करूँगा कि यदि आप थोड़ा-सा ध्यान देते हैं, आप माना कि डेली के 30 मिनट देते हैं, तो आपका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। मैं थोड़ा-सा इसमें ऐड करूँगा, मैं कहूँगा हो सकता नहीं, 100% हो जाएगा। करेक्ट, अगर बिल्कुल सर। किसी ने 30 मिनट अपनी नॉलेज को दिया ना, जो भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं या कुछ भी है, 30 मिनट नॉलेज को दिया, तो 1 साल में उसका बहुत सारा चेंजिंग होगा। लोगों का क्या करेक्ट सर, रहता है, करेक्ट। एक कंसर्न और मैंने देखा है, अभी डिस्कस कर ही रहे हैं, तो हाँ, लोग कंपनी को बोलते रहते हैं, ये कंपनी मेरी सैलरी नहीं बढ़ा रही है, ये कंपनी ऐसा नहीं कर रही है, मुझे छुट्टी नहीं देती हैं, मेरा ये कंसर्न है। तो वो दूसरे को दोष देते हैं, बट खुद अपनी तरफ कभी नहीं सोचते कि ठीक है, कंपनी मुझे जो दे रही है दैट इज ओके, मुझे ज़्यादा के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। कंपनी से तो ज़्यादा डिमांड कर रहे हो, आपको ज़्यादा है, तो आप अपने अंदर चीज़ें बिल्ड करोगे तो आपको ज़्यादा मिलेगा, और 100% मिलेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये मैं अपनी साइड की बात करूँ, मैं कभी भी क्लाइंट को ये नहीं कहता सर मेरी सैलरी बढ़ा दो। मैं इवन 2 ढाई साल से उसी बेस पे काम कर रहा हूँ। हम्म। बट मुझे बिलीव है, मैं अपने स्किल पे काम कर रहा हूँ, मैं अपने स्किल को बिल्ड अप कर रहा हूँ, और मुझे बिलीव है जिस दिन मेरा स्किल ओके हो गया, मैं उनको बाय बाय। तो हाँ। आप दोस्त क्लाइंट को ना दें, मेरा मानना है क्लाइंट को ना दें, खुद को देखें हम कहाँ बैठे हैं और हमें है क्या। तो स्किल पे ध्यान दें, और आपकी सैलरी क्या है, आप तो सोचोगे इतने नहीं मिलने वाले तो इतने मिल जाएंगे। तो स्किल मुझे लग रहा है मेन पार्ट है। हाँ हाँ, मेन मेन वही है, उससे आगे पीछे कुछ नहीं है। बिल्कुल सर। तो आज का जो बात की, मैं भी अभी तक जितने लोगों से मैंने बात की है, सबसे इंटरेस्टिंग था मेरे लिए, मेरे को भी काफ़ी कुछ लर्निंग रहा इस डिस्कशन के दौरान। और जो लोग देख रहे होंगे उनके लिए भी एक आइडियल रहेगा, कि लोगों को रहता है कि कौन है सर, मेरे को आप बताइए। मैं अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बना रहा था, तो उन्होंने कहा कि सर हाँ, ऐसे लोग कौन हैं जो नीचे से ऊपर आके आए हैं, या जो अभी एग्जीक्यूटिव है जिसने नीचे से स्टार्ट किया था। नहीं सर, नीचे से ऊपर जा ही नहीं सकते हैं। तो तुम एक उनके लिए मतलब पहले ऐसे शख्स हो जो अभी, जिससे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। वैसे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, करीब 20 लोगों को मैं ऐसे को जानता हूँ जो आज मैनेजर हैं और जिन्होंने ग्राउंड लेवल से काम चालू किया था। 4 इंजीनियर्स को तो मैं जानता हूँ, जिनको मैंने आज से 5 या 6 साल पहले मैंने खुद जॉब दिया था, और वो भी असिस्टेंट का जॉब मैंने उनको दिया था। ओह! 10 से 12 लोग थे, जिसमें से 5, हाँ, 4 या 5 लोग हैं जो आज मैनेजर हैं, सारे मैनेजर्स हैं। वो कौन हैं जिन्होंने ये नहीं कहा, सोचा माइंड में यार मैं तो इंजीनियर हूं, मैं तो बीटेक इंजीनियर हूं, मैं कैसे कपड़ा मारूंगा। उनको ये बोला गया ना, हाँ, अरे सीढ़ी उठा के इधर लेके जाओ, ठीक है सर। अरे इस ये डीजी गंदा हो रखा है या पैनल गंदा हो रखा है, कपड़ा मार, जी सर अभी मार देता हूँ। तो वो लोग आज ना सारे बहुत अच्छी पोजीशन पे बैठे हैं, बहुत अच्छी। तो यस सर, कॉल है। इट्स ओके, इट्स ओके। तो वही है कि मैं इतना कह के अभी इस कॉन्वर्सेशन को एंड करूंगा कि लाइफ में ना करने को बहुत कुछ है, हम दूसरों को ब्लेम न दें, एक बार अपनी तरफ तरफ देखें, अपनी आंखों को 1 मिनट के लिए बंद करके आप अपनी कमियां देखोगे ना, कि भाई मैं यहाँ पे क्यों हूँ, मैं यहाँ पर क्यों हूँ, तो मतलब आपको सारी चीजें दिख जाएंगी। अगर वो चीजें आपने दूर कर ली ना, तो जो आपकी जो छलांग होगी ना, तो देखने वाले भी हैरान रह जाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं 100% आपसे एग्री टू रियली, क्योंकि मैंने भी काफ़ी एग्ज़ाम्पल देखे हैं, लेकिन आपके पास हार्ड वर्क है और स्किल है, तो आप कहीं भी कामयाब बन सकते हैं। बाकी तो बहाने ज़िंदगी भर लगाते रहो। ठीक है राजू, मतलब बहुत अच्छा थैंक यू लगा सर। मेरे को बात करके आपसे। सर आपसे मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप भी डाउन टू अर्थ हैं। मुझे नहीं पता था कि मैं बात कर पाऊँगा। मैं काफ़ी आपको 2 साल से फ़ॉलो कर रहा हूँ। शायद फर्स्ट इंटरव्यू आपका बीपीसीएल में था एज़ ए पे ट्रांसफॉर्मर पे। हम्म हम्म तो हम्म बड़ा अच्छा लगा सर आपसे बात करके। हम्म।
तो अभी देखेंगे, अभी तो मतलब स्टार्टिंग है, अभी बहुत अच्छी नॉलेज, और हाँ, जो अभी हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश स्पीकिंग का, तो लोगों के लिए हो सकता है कि वो भी एक लर्निंग का रहेगा कहीं ना कहीं के से। वो कोई बड़ा मेरे हिसाब से बड़ा टास्क नहीं सर, आप नहीं नहीं, बड़ा नहीं आराम है। से कर, अरे, और भी जो लोग जो कह रहे थे ग्रुप बनाया उन्होंने। हम्म, हाँ, बड़ा टास्क तो नहीं मेरी है, दीपक से बट बात हुई। एक स्टेप कहीं पे आगे बढ़ना ना, वो बहुत बड़ा स्टेप है, चीज है। लोग ना करेक्ट। सोचते हैं, देखो, मैं अपने बारे में बताऊं ना, काफी पहले मैं, यार मैं, ये मेरी कमी है, इसको इम्प्रूव करता हूँ। 2 दिन फोकस रहता था, तीसरे दिन माइंड डाइवर्ट, ठीक है यार भूल गए, काम आज ज्यादा था, ये था। तो मतलब अपने आप को एक्सक्यूज कुछ न कुछ दे के वो चीजें डाइवर्ट हो जाती थी। बट हाँ, कोई सिस्टम बन जाता है ना, तो चीजें होना ही होना है। सपोज एक हमने ग्रुप क्रिएट किया है या डिस्कशन है, तो सब लोगों को है यार वहां पर उतने बजे वो रहेगा, और वहां अटेंड जो नहीं करेगा तो पूछने वाला भी है, भाई आज क्यों नहीं थे आप वहां पे, बिल्कुल। आप कैसे नहीं, बोल रहे काफी। हैं। हाँ, बताओ बताओ बताओ। नहीं, इस चीज से ना काफी एक एनर्जी सी मिल रही है, और बड़ी ना एक चाह सी रहती है 9:30 पे ऑनलाइन लाइव सेशन होना है। हम्म, और जो लोग ज्यादा मतलब जो कुछ ही लोग हैं, कुछ लोग तो काफी मुझे लगता है वीडियो देखने में पसंद करते हैं। हम्म, बट आप ना इस तरह की चीजें करते हैं तो आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है, और आप हमेशा ना उस माहौल में रहते हैं, यार मैं ये चीज जानने की कोशिश करूँ, ये सवाल की कोशिश करूँ, और ये आपके लिए प्लस पॉइंट है सर। और देखो, जी, लर्निंग क्या होता है ना, लर्निंग लाइफ टाइम रहती है आदमी के लिए यार, लाइफ टाइम लर्निंग बिल्कुल है हमारे बिल्कुल लिए। तो एक पैटर्न है, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न से, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से हम चीजों को देख पाते हैं इसके द्वारा। और बिल्कुल यही एक एक्सपीरियंस है। अगर मैं आज आपको बोलूं कि जो कुछ लोग सोच रहे हैं कि ठीक है, मैं जो बताता हूँ या जो भी है, तो मैं सिर्फ लोगों को सिखा रहा हूँ, बट मैं सीखता भी हूँ लोगों से। मैं जो बात करता हूँ ना, मेरा वीडियो कॉल करने से मतलब क्या होता है कि मुझे प्रॉब्लम बता लगे लोगों की, मैं उनके लिए फिर सॉल्यूशन कुछ ना कुछ निकाल सकूं। यस सर। डिफरेंट डिफरेंट लोगों से बात करने में डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम पता लगती हैं। तो वही है, अगर अपने आप को अच्छा करना है तो प्रॉब्लम भी देखनी पड़ेगी, किस तरह की प्रॉब्लम है, कैसे हैं, और जब भी हम थोड़े सक्सेस हो पाते हैं। बिल्कुल सर। ठीक है राजू, आपका थैंक यू भी सर, काफी थैंक यू। टाइम हो गया है, काफी लेट हो अच्छा चुके लगा हो। आपसे। कोई दिक्कत नहीं सर, आप टाइम तो खामे का हम वेस्ट करते रहते हैं। बड़ा अच्छा लगा सर आज आपसे बात करके, और काफी और मैं आता सीखने हूँ को एक दो बहुत दिन कुछ में, मैं मिला। नोएडा आऊंगा, आई विल ट्राई टू मीट यू। सर श्योर, हाँ। आई विल मीट। ओके, ठीक है राजू। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, गुड बाय। नाइट।